Glycosidic bonds. I think we have done also disaccharides. Beta? नहीं सर. Oh, so oligosaccharide next था monosaccharide के बाद. I think we have basically we have done like this. Oligosaccharides. It has 2 to 10 monomeric unit. Yes or no? And those monomeric units are monosaccharides. Is it clear? Yes sir. Hello. And its units are called as monomers. इतना लिखा था हम लोगों ने क्या? हाँ सर. We have different monosaccharides. They are linked by a bond known as Glycosidic. ये आपको याद रखना है कि in oligosaccharides monosaccharides are linked by glycosidic bond. It is a kind of question which can be asked in NEET. Is it clear? Yes, Types sir. of bond present in different compounds. It has been asked in previous year's question and previous exam. Is it clear? So we have if we have two monosaccharides, then we will call as disaccharides. Is it clear? If we have two monomeric unit, means two monosaccharides, that we call as disaccharides. सही है क्या? बोलो यार. Hello. Yes sir. And these are soluble in water. These are soluble in water. For example, we have maltose. आपको डिफरेंट चैप्टर में ये सबको कहीं ना कहीं नाम्स मिलेगा, ठीक है ना? We have sucrose, we have lactose, and here sucrose is non-reducing sugar. Sucrose is non-reducing sugar. समझ में आया क्या? हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर, आ रही है. It has one an important example. We have lactose, and lactose is present in milk. The whatever the sugar present in milk, that sugar is known as lactose. It is lactose is commonly called as malt sugar. Yes or no? Yes, sir. एक मिनट क्या लिखा? Lactose is commonly called as malt sugar. No, basically it is not lactose, it is maltose. Maltose लिखा है ना यहाँ पर.
and we have next lactose. It is known as milk sugar. And out of all the sugar, we have least sweet, that is least sweet sugar is lactose. So, And these kind of sugars are present in mammal's milk. बोलो यार. so what is the meaning of non-reducing sugar? अच्छा, आप लोगों को ये बताया नहीं मैंने क्या नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? नहीं सर. क्या अभी स्टार्च पढ़ाया मैंने आपको क्या? क्या सर? नहीं सर, नहीं स्टार्च पढ़ा पढ़ाया है। आपको मैंने? नहीं पढ़ाया ना? नहीं. अच्छा, ये आएगा, आगे आएगा. बेसिकली नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये होता है कि व्हेन वी टेस्ट सम काइंड, नहीं मैंने आप लोगों को पढ़ाया है फेलिंग सॉल्यूशन और व्हाट वी कैन से अपना हाँ, वो पीछे लिखवाया तो है. ऑल मोनोसैकेराइड्स आर reducing sugar as they have free aldehyde or ketone group which are capable of reducing Cu2 plus 2 Cu plus 1. लिखवाया तो है यार. आपने रफली बताया था वो एक्सपेरिमेंट में कैसे करना है. एक्सपेरिमेंट कैसे, ये भी आपको मैंने बताया था कि दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज यूज्ड इन बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन. हाँ सर, आपने ये बताया था. था. इसमें होता है क्या है ना कि इस सॉल्यूशन में जब आप इस तरीके का आप उसमें बेसिकली एक इस टाइप का प्रॉपर्टी है कि इन विच वी कैन डिफरेंशिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाट वी कैन से कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल, इफ इट इज मोनोसैकेराइड देन इट विल चेंज द कलर. कॉपर +2 में रहेगा, कॉपर +1 में आ जाएगा तो इट विल चेंज कलर. जो भी उसके लिए हम लोग सैंपल लेंगे तो सैंपल के जो हम लोग को उसके लिए टेस्ट करने के लिए जो हम लोगों ने केमिकल लिया है उसका कलर चेंज हो जाएगा. और इसका यूज अपने पास वहां पर भी होता है जब हम लोग व्हाट वी कैन से व्हेनेवर वी गो टू द पैथ लैब वेयर टू टेस्ट what kind of infection we have in our body. So in stool test, in urine test, these kind of things are used. Benedict test and Fehling test is used. Basically जो basic principle होता है वो क्या होता है, Benedict test का होता है और Fehling solution यूज करते हैं. Benedict test में Benedict solution यूज करते हैं और Fehling test में Fehling solution यूज करते हैं. हाँ जी. यस सर, आपने बताया था. इफ कॉपर, अगर कॉपर +2 के फॉर्म में होगा तो उसका कलर कुछ और होगा. Then if it is changed to when it is reduced to +1 and it will be reduced only when we have monosaccharides. For example, we have for example this is monosaccharides. It has two ends, so both ends should be reduced. जो टेस्ट देने के लिए दोनों का दोनों एंड को रिड्यूस होना पड़ेगा तब तक ये टेस्ट देगा. अगर एक एंड है उसका अगर नॉन रिड्यूसिंग है, वन एंड इज रिड्यूसिंग, देन नेट जो हम ओवरऑल बोलेंगे दिस मॉलिक्यूल इज नॉन रिड्यूसिंग. अब पूरे मॉलिक्यूल्स को टेस्ट देना, मतलब पूरे मॉलिक्यूल का पार्ट उसका नॉन रिड्यूसिंग होगा ताकि उसको क्या बोले हम लोग, रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे. सर ये वापस समझाओ, बोलो ना नॉन यार. रिड्यूसिंग वाला. क्या बोला बेटा? सर ये नॉन रिड्यूसिंग वाला वापस समझाओ ना. अच्छा, या जो अभी अब स्क्रीन पे लिखा हुआ आपने लिख लिया क्या? हाँ सर, लिख लिया. हाँ सर. We have a monosaccharides. We have a monosaccharide and we have to test either it is mono or poly or it may be di. ठीक है ना? किसी को आप में से किसी को पता है कि ये मोनोसैकेराइड है, लेकिन किसी और को आपको पता है कि आपको कंफर्म करना है कि ये मोनो. बेसिकली जो ये टेस्ट होता है फेलिंग टेस्ट और व्हाट वी कैन से बेनेडिक्ट टेस्ट, ये इस बात को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है कि जो कंपाउंड्स अवेलेबल है वो मोनोसैकेराइड्स में है या पॉलीसैकेराइड्स में है. अगर वो टेस्ट पॉजिटिव, एक होता है टेस्ट पॉजिटिव देना, एक होता है टेस्ट नेगेटिव, मींस उस चीज का प्रेजेंस नहीं है. अगर वो that compound gives positive taste means it will change Cu2 plus 2 Cu plus 1.
एंड टू गेट कि अच्छा हम लोग को तो दिखेगा नहीं कि इलेक्ट्रॉन लूज कैसे कर रही है, इसके चेंज होने से कलर में कुछ चेंजेस आएगा। हाँ बेटा, हाँ सर, कलर। इसका कलर चेंज होगा, ठीक है ना। तभी तो जो जो लोग लैब में काम करते हैं, जो लोग डॉक्टर्स के यहाँ काम करते हैं, जो लोग पैथोलॉजी का काम करते हैं, इसी प्रॉपर्टी के बेस पे तो वो लोग डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ जी, समझा समझा सर। कि नहीं, समझ में आया क्या। हाँ सर। और इसके लिए हम लोग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं और फेलिंग सॉल्यूशन का यूज करते हैं। अगर इसे और आपको जानना हो तो मैं फिर आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लास में बता दूंगा, ठीक है ना। जब हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे तो उसके बाद हम लोग थोड़ा कुछ ओवरव्यू लेंगे कि और क्या क्या चीज आप लोग को और जानना है, तो आपको और डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। चलेगा अगर सर। डाउट हो, अगर यस सर। इसके बावजूद आपको इसमें कुछ और समझना हो तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना। लास्ट क्लास में जब हम लोग खत्म करेंगे इसको, उसमें आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। आपको अगर डॉक्टर बनने का अभी शौक है, पैथोलॉजी अभी का शौक है, तो कोई नहीं, वो भी आता है, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ बेटा, बोलो यार। यस सर। यस सर। तो हम लोगों ने क्या लिखा, इन डाइसैकेराइड्स वी हैव माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज and they are soluble in water. In out of these we have sucrose, and sucrose is non reducing. Yes or no? Yes, sir. हाँ सर। एक एक्स्ट्रा पॉइंट और लिख लो इसमें आप, sucrose is also called as cane sugar. Sucrose is also called as cane sugar. बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या क्या होता है, सुक्रोज ही होता है, और दैट वी कैन कैन शुगर और कॉमन शुगर, और वी कैन आल्सो कॉल इट एज कमर्शियल शुगर, जो कि वर्टिकन से शुगर केन से इसको मिलता है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। क्लियर है क्या। हाँ जी, बोलो बेटा, इज इट क्लियर। हाँ सर, क्लियर है। तो ओलिगोसैकेराइड में क्या अपने पास क्या 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 आ जाएगा, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। लैक्टोज। एक कंपाउंड और होता, एक शुगर में और होता है जो कि इंसेक्ट्स में पाया जाता है, ट्री हेलोज, प्रेजेंट इन हेमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, हाँ सर। और जहां पे आप लोगों ने लिखा था ट्री हेलोज, सुक्रोज, सुक्रोज इज आल्सो नॉन रिड्यूसिंग, नॉन यस। रिड्यूसिंग एनआर मतलब, तो उसी तरीके से अपने पास ट्री हेलोज इज आल्सो नॉन रिड्यूसिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो दोनों नॉन नॉन रिड्यूसिंग मतलब Cu+2 को Cu में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे ना, Cu+. मतलब टेस्ट देगा ही, जो टेस्ट अपने को मिल रहा था कि वो ओलिगोसैकेराइड्स और मतलब कि मोनोसैकेराइड्स को हम लोग और कंपाउंड से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, वो ये टेस्ट देगा नहीं, मतलब इट विल गिव नेगेटिव टेस्ट, मींस इस चीज का ओके। आपको फायदा नहीं मिलेगा कि वो है कि नहीं है। इसका मतलब ऑब्वियसली नहीं है, इसका मतलब ये मोनोसैकेराइड्स में नहीं आएगा। हाँ सर, अगर समझे। टेस्ट दे रहा है मतलब ये मोनोसैकेराइड्स है। अब कंपाउंड कौन सा है उसके लिए फिर हम लोग कंफर्मेटरी अलग अलग टेस्ट करते हैं, ठीक ओके है ना। सर। यस सर। इफ लैब में होता है तो आपको लैब में सब करवाया जाता है, ठीक है। हाँ if we सर। have
इफ वी हैव थ्री मोनोसैकेराइड्स तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइसैकेराइड्स बोलेंगे, ठीक है ना। वैसे इतना आप लोग को इतना जरूरत है नहीं, ठीक है। वी हैव 3 monosaccharides, 3 unit of monosaccharides. एग्जाम्पल है रेफिनोज। अब 3 यूनिट इसमें कौन कौन से होंगे, एक तो होगा अपने पास गैलेक्टोज, नाम सुना क्या आप लोगों ने। हाँ सर। एक है ग्लूकोज, ये तो नाम सुनेंगे आप लोग। एक है फ्रुक्टोज जो कि फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है। इस तरीके से वी में हैव आल्सो टेट्रासैकेराइड्स, वी हैव आल्सो पेंटासैकेराइड्स। तो खैर इसकी जरूरत है नहीं, इसलिए हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। और कभी कभी गैलेक्टोज को GAL भी लिखा जाता है और ग्लूकोज को GLU लिखा जाता है। आपको आगे मिलेगा ग्लूट4। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बीच बीच में। हेलो सर। हेलो, हेलो, सर हेलो, का आवाज आवाज आ रही है बेटा। सर एको हो रहा है। एक मिनट, अब ठीक है। हेलो, सर एको हो रहा है फिर नहीं से। सर एको हो रहा है। एक्चुअली आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी। हेलो, हाँ सर अभी आ रही है।
तुम लोग कहाँ पढ़ते हैं? हाँ सर। When क्योंकि सेल है तो सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा. Whenever we have cell to get energy, glucose has to enter the cell. So this protein helps there to it enables the cell to get the glucose inside. We use GLUT4. कभी नाम सुना आप लोगों ने क्या? सुना सुना लग रहा है। सुना सुना नहीं लग रहा है. पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर सर वो 147. एक टेबल में है ना? हाँ बेटा, एनसीईआरटी किसी टेबल में है ना वो? एनसीईआरटी एक सवाल एनसीईआरटी से पूछा गया था. पेज नंबर 147 एनसीईआरटी की जस्ट राइट साइड में आपको नीचे जो बॉक्स है टेबल 9.5 में मिल जाएगा. हाँ सर वही बोल रही हूँ। ठीक है. तो GLUT4 इज अ प्रोटीन. उसका फंक्शन ये होता है. तो आप ये वाला सेलेक्ट आप लोगों ने लिख लिया क्या? हाँ सर लिखा। सर पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 147. इसका फंक्शन लिख लो GLUT4 का. क्योंकि जो भी सवाल पूछा जाता है ना, जैसे कि इसको हम कैपिटल में लिखते हैं GLUT4. It enables the glucose to come inside, or we can say transport inside the cell. ये आप कहीं पे स्टार करके लिख लो. और जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो भी whatever it has been asked, you have to know as a notes or as a what we can say as a important points. जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सारे क्वेश्चन आपको आना चाहिए. ठीक है क्या? बोलो यार. हाँ सर। ये आप लोगों ने लिख लिया क्या इसको? क्या सर हो गया? तो जब हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में और सा डिटेल्स देखेंगे कि किस किस टाइप का प्रोटीन होता है. कुछ प्रोटीन हार्मोन होते हैं, कुछ प्रोटीन अपने पास एंजाइम होते हैं, और कोई इस अलग अलग कोई हेल्पिंग एजेंट की तरह तौर पे काम करता है. ठीक है क्या? हेलो हेलो. हाँ सर। हाँ। आगे बढ़ा जाए क्या? हाँ सर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखो पॉलीसेकेराइड्स. पॉलीसेकेराइड्स में मोनोसेकेराइड यूनिट का नंबर क्या होगा? व्हाट इज द नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स और मोनोसेकेराइड्स इन So more than 2. मोर देन 2? More than कोई more और? than 3. सर एन नंबर। वेरी गुड. तो भी हम लोग अगर मोर देन 3 होगा, इफ यू हैव 4, इफ यू हैव 5, तो हम लोग उसको ओलिगोसेकेराइड क्यों नहीं बोलेंगे? जब हम लोग पॉलीसेकेराइड बोलेंगे इसका भी कोई ना कोई रेंज होगा ना. बोलो यार. हाँ। बेसिकली इट हैज मोर देन 10, क्योंकि जो 2 से लेकर 2 to 10 जो वाटर मोनोसेकेराइड यूनिट जो होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगो बोलते हैं ना. हाँ सर। ओलिगोसेकेराइड्स. एक होगा तो क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड्स. वहीं से 10 से ज्यादा, ठीक है, तो किस में आ जाएगा अपने पास? पॉलीसेकेराइड्स में आ जाएगा.
मीन्स मोर देन 10 मीन्स इट मे बी 11, इट मे बी 20, ठीक है क्या? सर 10 होगा तो ओलिगोसैकेराइड। ऑब्वियसली आपको मैंने लिखवाया ना 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स आर इन ओलिगोसैकेराइड, लिखवाया था इससे कुछ देर पहले आपको। सर अभी आपने मोर इक्वल टू भी डाला नीचे। नहीं मतलब इक्वल नहीं, वो तो ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन 10, ठीक है ना? हाँ ओके सर। कुछ चीजें आप लोग खुद से भी सोच लिया करो। हाँ, तो जो इसका मोनोमेरिक यूनिट होगा, इट कंपोज्ड ऑफ large number of monomeric units, we can say large number of monosaccharides, or we can say monomeric units or repeating units more than 10 होंगे, ठीक है? समझा कि नहीं? खास बात यह है समझा सर। all polysaccharides are reducing or non reducing? वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? कैसे करेंगे वो इसमें आएगा ही नहीं। जो उसमें हम लोगों ने देखा एक तो कंफर्म था अपने पास जो कि ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग, ठीक है? सर। नेक्स्ट वी हैव डन ओलिगोसैकेराइड्स। इन ओलिगोसैकेराइड जो अपने पास नॉन रिड्यूसिंग था उसको हम लोगों ने मेंशन कर लिया। इसका मतलब जो बचे होंगे वो रिड्यूसिंग हो जाएंगे ना, मतलब जो भी सारे सिंपल जो भी सबके सब सिंपल ग्लूकोज होंगे ऑल दोज आर रिड्यूसिंग शुगर। जो हायर शुगर होंगे जैसे हम लोगों ने सुक्रोज की बात किया और ट्रिहेलोज की बात किया, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग। उसी तरीके से जो हायर शुगर है मतलब 10 से ज्यादा वाले वो मैक्सिमली किस में मतलब कि जो मैक्सिमम मतलब जितने भी पॉलीसैकेराइड वो तो कंफर्म वो नहीं देंगे, लेकिन जो ओलिगोसैकेराइड हो सकते हैं उसमें दोनों आ सकता है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसके हम लोग पढ़ते हैं, बाद बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग छोड़ देते हैं इतना क्योंकि अपने पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं और सबको ईच एंड एवरी कंपाउंड्स को हम लोग ये नहीं कह सकते कि सैकेराइड रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है क्या? सो ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग सिंस इट हैज नो रिड्यूसिंग एंड। एक सिर्फ इनके पास कुछ कंपाउंड होते हैं जिनके पास वन रिड्यूसिंग एंड होगा, लेकिन ओवरऑल क्या होगा, ये नॉन रिड्यूसिंग होंगे, ठीक है क्या? यस सर। इसमें आपको ब्रैकेट में लिखना है, वैसे इसमें लिखने की जरूरत है भी नहीं, बट इट हैज वन रिड्यूसिंग एंड and other is non reducing. So we have other is non reducing, ठीक है? other end is non reducing end. ओवरऑल मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या होगा? नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग। ओवरऑल मॉलिक्यूल इज इतना समझा कि नहीं यार? समझा सर। आगे बढ़ो क्या?
हाँ सर। एक मिनट। According to function, they are classified as nutritive and structural. कुछ न्यूट्रिएंट्स के तौर पे इंपॉर्टेंट है, कुछ अपने समार स्ट्रक्चरल polysaccharide. For example, we have homopolysaccharide. It means although all the monomeric units are same, that kind of polysaccharides are known as homopolysaccharides, and we have other is heteropolysaccharide. Is it clear? यस सर। आगे बढ़ो क्या? हाँ। किसी का रह गया क्या? किसी का रह गया? हो गया सर। According to function, we have two types of polysaccharide. One is nutritive and other is structural. Further, structural proteins are different types. इसमें अपने पास स्ट्रक्चरल में कौन कौन से आ जाएंगे अपने पास? वी हैव फर्स्ट वन इज होमोपॉलीसैकेराइड्स. होमोपॉलीसैकेराइड्स समझा कि नहीं यार? इसमें क्या होगा? सेम मोनोमेरिक यूनिट, नहीं बोलोगे क्या? हाँ सर सेम होना। इट मीन्स इसको मतलब आप यहां से नेक्स्ट कंटिन्यू करें, ठीक है ना? मतलब वी हैव, यहां से मैं लिख रहा हूं उसको, सेम चीज है होमोपोलो. आपको जहां से जैसे कंटिन्यू आपको कंटिन्यू करते रहना है. होमोपॉलीसैकेराइड जो पहला अपने पास है, इसको इट हैज सेम मोनोमेरिक यूनिट्स. सो इसका पहला जो अपना होगा अपने पास क्या है? बहुत जाना पहचाना नाम, वी हैव सेल्यूलोज. सेल वॉल किस चीज का बना होता है अपने पास? सेल्यूलोज। किसमें? प्लांट्स में। और सेल बैक्टीरिया सेल वॉल? पेप्टिडोग्लाइकन। और फंजाई में? काइटिन। Titan. एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर मेड अप ऑफ? काइटिन का ही। जब ये हाँ तीनों सर, पता होगा आप लोगों को. सर कैल्सीफेरस कुछ होता है। काइटिन सही तो बोला था आप लोगों ने. हाँ सर काइटिन ही है। हाँ. अगर इस सेलुलोज के बारे में और खास बात कहा जाए, दे आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ. मोस्ट अबंडेंट. आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो क्या इसका डीपीपी? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हो आप लोग क्या? सर डीपीपी में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो क्या आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है क्या? हाँ नहीं सर वो टफ है, जो बायोमोलिक्यूल्स का जो हमें मिला ना न्यूक्लियस से, बहुत टफ है वो। टफ नहीं है सर आप बेटा. उसको एक बार करवाएंगे कैसे सीक्वेंस क्लास? आगे पीछे है, उसमें सीक्वेंस थोड़ा मतलब कि टॉपिक मिक्स अप है, लेकिन जो जो आपको पढ़ाएगा वो तो करोगे ना. चलो हम लोग एक क्लास रखेंगे, कभी आप लोग एक्स्ट्रा टाइम निकालो उसका क्लास हाँ सर। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? वी हैव नेक्स्ट बी पार्ट स्टार्च. ये भी बहुत फेमस नाम है. स्टार्च कहाँ पाया जाता है? स्टार्च है क्या? कोई बताएगा? पॉलीसेकेराइड तो है, होमोपॉलीसेकेराइड है ही, और प्लांट्स में स्टोर करते फूड. स्टोर्ड फूड इन, फॉर्म में रहता स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स क्या होता है? है सर। स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स क्या होता है? ग्लिसोजिन इन लिवर। ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन बेटा. और उसी को मैं ग्लिसोजिन बोल रही हूँ। ग्लाइकोजन नो बेटा, इट इज ग्लाइकोजन. ठीक है सर ग्लाइकोजन।
they are starch are polymer of glucose. Stored food of in plants and polymer of glucose. ठीक है, इनके यूनिट्स होते हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। खासतौर से स्टार्च में या फिर जो मैं अगर पॉलीसेकेराइड की बात करूं, इसमें नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड बहुत सारे होते हैं। Starch, I think you have heard about iodine test. When we test with iodine of starch, its color changes. Blue black. Somewhat blue black. आप इसको इस तरह टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि पोटैटो में व्हाट वी कैन से स्टार्च पाया जाता है ना, तो आप इसको कट करके रख सकते हो और आयोडीन से टेस्ट करोगे तो इट विल कुछ उसका कलर समवॉट चेंज होगा। आप ये घर एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हो अपने। देखा है सर। अच्छी बात है, हाँ देखना सर। चाहिए। सबको पता है ना? हाँ सर। कराना आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। आपसे मैं सवाल पूछूंगा, याद रखना फिर। हाँ सर। नहीं, सवाल अगर सवाल का जवाब नहीं मिला तो फिर सबको मैं मुर्गा बना दूंगा। आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। 1 मिनट से स्टार्च का नहीं लिखा। Starch is stored food in plants and polymer of glucose. इनके हाँ, यूनिट्स की सर, बात किया जाए, they have units amylose and amylopectin. किसी में amylose होगा, किसी में amylopectin होगा। आगे बढ़ो क्या? हाँ सर, हो गया। हाँ सर। We have amylose. amylose में कितने होते हैं? 250 to 300 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। खैर इसका नंबर ऑफ यूनिट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो ये स्टार्च होगा एमाइलोज वाला पार्ट, इट विल गिव अ टेस्ट, गिव्स ब्लू with iodine. When we test it with iodine, that's why at the time it will change its color to blue. समझा कि नहीं यार? समझा सर। We have amylopectin. It has nearly 330 glucose what we can say units. इनका टेस्ट कैसा होता है? It gives red color with iodine. Only for information आपको लिखाया जा रहा है। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, जब आप लोग आगे जाओगे पढ़ोगे तब करवाया जाएगा। अगर न्यूट्रिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू में बात करूं तो जैसे अपने पास ग्लाइकोजन है और स्टार्च है, दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिटिव पॉलीसेकेराइड्स। व्हेन आई आस्क यू कि स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ व्हिच काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड, तो दे विल कम इन अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिटिव पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, और ऑब्वियसली जब न्यूट्रिटिव दे रहा है लेकिन इनके पास कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर भी है, तो दैट्स व्हाई वी हैव इन स्ट्रक्चरल वी हैव आल्सो स्टार्च। लेकिन स्ट्रक्चरल में खास तौर से आता है अपने पास सेल्यूलोज और काइटिन आता है। क्लियर है क्या? बोलो यार। हाँ सर। समझा सर।
हाँ, we may have different types of what we can say polysaccharides, or in starch we may have some kind of linear chain, कुछ सिंपल होंगे, कुछ coil part होंगे. We may have also some kind of what we can say helical structure. सर किसका बना रहा? स्टार्च का. ओके सर. We have some kind of coil structure. इसी की वजह से ये जो आपको coiling part दिख रहा है ना, ये सब coiling part होता है. इसी coil part में, इसी helical parts में iodine रुक जाता है. That's why they gives taste with iodine. ठीक है क्या? रीजन क्या है? आपने क्या बताया अभी? उसका मैं रीजन आपको लिखाऊंगा. जो अपने पास खास तौर से ये अपना अमाइलोस है ना, तो अमाइलोस अपने पास सिंपल वाला हो गया, ठीक है, जो लीनियर चेन में आते हैं. अगर मैं ब्रांच चेन की बात करूं, अगर हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करूं, तो किसमें आ जाएगा? अमाइलोपेक्टिन, ये इसमें आ जाएगा. ठीक है, amylose and amylopectin both are starch. So since linear structure come for the amylose और amylopectin के लिए क्या होता है अपने पास? ब्रांच चेन होते हैं. ठीक है, समझा क्या? स्टार्च में भी linear chain, it may be linear, it may be branched. हाँ बेटा, हेलो. This one is amylose, this one is amylopectin. इसका टेस्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. Can I proceed? हाँ सर. 1 मिनट सर. हो गया सर. अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ा ना, कुछ वी हैव सम हेलिकल स्ट्रक्चर कॉइल पार्ट. इन्हीं कॉइल पार्ट्स में आयोडीन का अटैचमेंट होने की वजह से दे गिव्स दिस काइंड ऑफ टेस्ट दैट वी कॉल एज स्टार्च टेस्ट और आयोडीन टेस्ट. So as starch forms helical structure, so starch and iodine is blue in blue and violet in color, while some cellulose have linear structure, so it can't hold iodine and do not give iodine taste. जैसे आप लोगों ने we have amylopectin, कोई अगर सिंपल अपने पास होगा तो क्या वो इस तरह का टेस्ट दे सकता है क्या? बोलो. नहीं. तो यहाँ पे अगर क्वाइलिंग पार्ट होगा, हेलिंग पार्ट होगा, हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे आयोडीन मॉलिक्यूल इसमें अटैच होंगे. हाँ. तो कुछ टाइप से अपना मूवमेंट भी दिखाएगा, कुछ रिएक्शन भी होगा, जिनकी वजह से इनका कलर चेंज होता है. मतलब एक अलग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसकी वजह से कलर चेंज होता है. इसलिए हम लोग बोलते हैं इट गिव्स स्टार्च गिव्स आयोडीन टेस्ट. जो सिंपल होंगे वो टेस्ट नहीं दे पाएगा, सिंस दे कांट होल्ड they can't hold iodine molecule. आयोडीन. समझा कि नहीं यार? समझा. हाँ, तो इसका आप रीजन लिख लो. स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल स्ट्रक्चर. समझ में आ गया ना कैसा होता है? some kind of coil part. So starch iodine forms a complex. Starch and iodine, iodine means iodine,
is blue violet in color. While we have cellulose, क्या सेलुलोज ये टेस्ट देगा? नहीं सर. Since it has no helical structure, उनके पास लीनियर स्ट्रक्चर होगा. लीनियर मीन्स सिंपल प्लेन स्ट्रेट लाइन. आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पढ़ा है ना आप लोगों ने? हाँ सर. आप लोग सब अच्छे बच्चे हो, सब आप लोग सब कुछ पढ़ रखे हो ना? हाँ जी, पढ़ा है सर. इसे तो बोला सब लोग अच्छे बच्चे हो, सब कुछ पढ़ रखे हो. लेकिन जब मुझे जॉब नहीं मिलता ना, फिर सब अच्छापन, अच्छे बच्चे ना सब खराब हो जाते हैं. तो आयोडीन टेस्ट वही देगा जिनके पास हेलिकल स्ट्रक्चर होगा. फॉर एग्जांपल वी हैव स्टार्च एंड स्टार्च हैज हेलिकल स्ट्रक्चर. बोलो यार. तो स्टार्च गिव्स आयोडीन टेस्ट. ठीक है क्या? अबे तेरे पास में ग्लू स्टिक है? हेलो सर. हाँ बेटा, लिख लिया क्या आप लोगों ने? हाँ सर, हो गया. लेकिन एक पॉइंट आपको मैं आप चाहे तो इस पॉइंट को लिख सकते हो. वी हैव सेलुलोज होता है ना, सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड. इट कैन बी डाइजेस्टेड, लेकिन इनकम इसमें इसका डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है. कंप्लीटली इसका डाइजेशन हो नहीं सकता है. दैट्स व्हाई व्हेन इट डाइजेस्टेड इनकम्प्लीटली इट फॉर्म्स अनदर मॉलिक्यूल दैट वी कॉल एज सेलोबायोस. क्या बोलते हैं? बायोस. सेलोबायोस. एंड इट हैज 2 यूनिट्स. जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा ना, इनके पास 2 मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं. ये जो सेलोबायोस होता है अपने पास, इट इज रिड्यूसिंग. अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा दैट पॉलीसेकेराइड्स आर ऑल पॉलीसेकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग. अगर वो मोनोमेरिक यूनिट्स में आ जाए तो क्या वो रिड्यूसिंग हो सकता है क्या? हो सकता है. हाँ. तो इसीलिए सेलुलोज जब इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है तो क्या होगा उसके पास? इट विल बी रिड्यूसिंग. समझा कि नहीं? हेलो. क्लियर है सर. हाँ. अगर मैं आपसे पूछूं, खैर आपको पढ़ाया नहीं तो फिर मैं पूछने से कोई फायदा नहीं है. अगर आपसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन वी विल हैव सेल्यूलोज. सेल्यूलोज. हाँ. अगर प्रोटीन की बात करेंगे तो फिर वहां से हम लोग अलग बोलेंगे. ठीक है ना? वी हैव रूबिस्को एंड वी हैव व्हाट वी कैन से. हाँ यस सर. कितना हो गया आप लोगों का? क्या हो गया सर. आगे बढ़ा जाए? नहीं सर, 1 मिनट. नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सी पार्ट, ग्लाइकोजन. पॉलीसेकेराइड्स में होमोपॉलीसेकेराइड्स में तीसरा क्या है? ग्लाइकोजन. हाँ सर, हो गया. सबका हो गया? 1 मिनट सर. जिसका हो गया वो लिखो. नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट, ग्लाइकोजन. हो गया क्या आप लोगों का? 1 मिनट सर. बेटा थोड़ा फास्ट चलाओ. हो गया सर. C part is glycogen. And glycogen is stored food material in plants में. नहीं सर. इसमें होता बताओ. एनिमल्स में.
ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये हमेशा पता होना चाहिए। इजी है लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। और किस रीजन में इनका स्टोरेज होगा वो मुझे बताएगा। तब ये सवाल पूछा गया है लीवर। इनका स्टोरेज को लेकर। तो कहाँ कहाँ पे ये स्टोर होंगे? लीवर पे होंगे और मसल्स पे भी होंगे। जनरली लीवर में होता है ना। हाँ, लेकिन अगर मैं कंपेरिजन करूं तो लीवर में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मसल्स। क्लियर है क्या? तो बट हम बोलते कि लीवर में स्टोरेज होता है, बट वहां पे उसका ब्रेक डाउन भी होता है ना। हाँ, तो यूज करने के लिए उसको ब्रेक डाउन हो जाएगा। अच्छा, ओके सर। कहीं ना कहीं इसको स्टोर करना पड़ेगा ना। दैट्स व्हाई वी हैव एन ऑर्गन लीवर। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा एक और बात ये है कि दैट्स व्हाई वी कॉल ग्लाइकोजन एज एनिमल स्टार्च। कोई दिक्कत है क्या इस बात में? नहीं। कभी सवाल पूछा जाता है एनिमल स्टार्च किसे बोलते हैं, तो क्या होगा? ग्लाइकोजन। इट इज हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर। हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर and gives red color in presence of iodine. हो गया क्या आप लोगों का? हाँ सर। चाहे तो आप लिख सकते हो उसको भी, gives red color। इससे पहले एक रेड कलर कोई और भी दिया था ना? हाँ सर। यस सर। पेंटिन। माइलोपेक्टिन सर। अमाइलोपेक्टिन। इसका हो गया वो नेक्स्ट पार्ट लिखे हैं, डी पार्ट काइटिन। जिनका हो गया वो नेक्स्ट पार्ट लिखे हैं, डी पार्ट काइटिन। आप काइटिन भी बोल सकते हैं, काइटिन भी बोल सकते हैं। एंड काइटिन को हम लोग फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं। सबका हो गया क्या? हाँ सर। हो गया सर। बहुत स्लो चल रहे हम लोग यार। काइटिन इज अ लीनियर पॉलीमर। बोलो यार। And it is the important component of exoskeleton of arthropods. Yes or no? And cell wall of fungi. ये सवाल पूछा गया था एक बार, फंगल का सेल वॉल किस चीज का बना होता है? आई थिंक 2017 में। क्लियर है सब लोग आपको? वी हैव सेलुलोज एज अ मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक। हेलो, यस सर। we have done that cellulose is the most abundant organic molecule, so we have second most abundant। कौन होंगे वो? काइटिन।
कोई दिक्कत है इस बात से? नहीं सर। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको, जैसे हम लोगों ने अभी ग्लाइकोजन को बोला एनिमल स्टार्च, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्हाट वी कॉल्ड? फंगल सेल्यूलोज। बोलो ना यार। तो फिर तो इंसेक्ट में भी होता है ना? बेटा यहाँ पे मैंने आई हैव मेंशन हियर आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में कौन कौन आता है? रितिका आती है कॉकरोच। और तनुश्री आती है ना। नहीं सर। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ आर्थ्रोपोड्स। गलत बोला क्या? आर्थ्रोपोड्स का मतलब क्या होता है बेटा? The one having appendages. jointed legs, हाँ। jointed appendages। तो बेसिकली आर्थ्रोपोड्स हम लोग नहीं आते हैं, इसलिए इसमें इंसेक्ट रहता है, और इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है। दैट्स व्हाई दे आर सम काइंड ऑफ हार्ड काइंड ऑफ सरफेस। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल काइटिन एज फंगल सेलुलोज। जिनका हो गया वो नेक्स्ट पार्ट लिखे हैं, इनुलिन, नॉट इंसुलिन, इट इज इनुलिन। बोलो यार। हेलो हाँ हेलो, सर। आगे बढ़ो क्या? एक मिनट सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनुलिन। इनुलिन इज ऑल्सो अ, ध्यान दें, इट इज नॉट इंसुलिन। कई बार ऑप्शन में आप लोग धोखा खा सकते हो कि इंसुलिन है इनुलिन है, कहीं ऐसा ना हो कि इंसुलिन की जगह इनुलिन में आप लोग टिक कर दिए। इट इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ, और वी कैन से लीनियर पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। क्लियर है क्या बेटा? आज आपका क्लास है क्या? हाँ सर मेरा है। सर बोर्ड लेक्चर है सर। जी सर, कब आएगा? नहीं सर, जिया सर का नहीं है। फिर और कौन से पढ़ाते हैं? सर केमिस्ट्री वाला। केमिस्ट्री। कितने बजे से है? सर मेरा 4 बजे से। तो आप लोगों का नेक्स्ट जो फ्राइडे को, उसमें भी आप लोग इस तरह से रहेगा क्या, 9 बजे से क्लास स्कूलिंग? हाँ सर मेरा स्कूल रहता है 8:30 से 1:40 तक, और फिर क्लास रहता है 4 बजे से। वी हैव जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो हम लोग इनुलिन को यूज करते हैं जीएफआर को जानने में, क्योंकि ये एक ऐसा है, क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर है ना, तो ये अपना एक उस पार्ट से मतलब कि जो अपना ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है अपने पास, वहां से ये पास हो जाता है, और जितना वहां से पास होगा तो उससे हम लोग एक रेट को मालूम करते हैं कि किस रेट से लिक्विड्स का, ब्लड्स का, यूरिन का फ्लो हो रहा है वहां से। ठीक है, हाँ सर। that's why we use inulin as a glomerular filtration rate. Is it clear? बोलो यार।
बोलो। समझा सर सर। रिपीट करेंगे? जो बोला बेटा, रिपीट करो। हाँ सर। आई एम सेइंग दैट कि कुछ अपने पास जो बॉमेन कैप्सूल होता है ना, वहां पर क्या होता है अपने पास, ग्लोमेरुलर वर्टिकल टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, या जिससे यूरिन्स वगैरह छनते हैं, मतलब व्हेन दे आर हाँ फिल्ट्रेटिंग। सर। लेकिन इनोलिन ऐसा सब्सटेंस है जो कि इनके साथ ये पास हो जाता है। अच्छा ओके सर। तो जितना उसमें आएगा वही तो बताया ना कि रेट कितना है, कम आएगा तो कम रेट होगा, ज्यादा आएगा तो ज्यादा रेट होगा, क्योंकि रेट को जानने के लिए फ्रीली फ्लो होना चाहिए। तो इनोलिन फ्रीली फ्लो कर पाता है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ओके सर। ठीक है। हाँ सर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। लेकिन जो अपना हम लोगों ने पढ़ा ग्लाइकोजन पढ़ा, काइटिन पढ़ा, एंड वी हैव स्टार्च, वी हैव सेलुलोज एंड वी हैव काइटिन। डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के पास जो बॉन्ड होगा ना, सबके पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ऑल हाँ दीज सर। homopolysaccharides have they are joined by glycosidic। आप एक पॉइंट कहीं पे लिख लो इसका डाल के, जो हम लोगों ने 5 पढ़ा ना, ए से लेकर ई तक, all these homopolysaccharides are joined by glycosidic bond। बोलो यार, समझ जाओगे ना आप लोग? all these homopolysaccharides are bonded by glycosidic bond। समझ में आ गया? इनके मोनोमेरिक यूनिट्स आर जॉइंटेड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझा कि नहीं? समझा सर। लेकिन सबका अलग अलग पोजीशन होगा, कोई 1,4 पे होगा, कोई 1,6 पे होगा, कोई 1,2 से होगा। मतलब जो कार्बन का जो नंबरिंग होगा वो अलग अलग तरीके से बॉन्डेड होंगे। समझा कि नहीं? यस सर समझा। और इसमें से ब्रांचिंग कौन कौन, किसका किसका ब्रांचिंग होगा? सेलुलोज कैसा होगा अपने पास, बताओ? ग्लिसरीन का होगा। सेलुलोज इज अनब्रांच्ड, या कहीं पे स्टार डाल के लिख लो कि आपसे सवाल पूछा जाए। वी हैव काइटिन, काइटिन इज आल्सो अनब्रांच्ड। लीनियर पॉलीमर। स्टार्च कैसा होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर। यस सर। एंड ग्लाइकोजन इज, या आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है, इट इज हाईली ब्रांच्ड। सर आपने काइटिन में क्या लिखा वहाँ? अनब्रांच। बेटा सेम चीज, अनब्रांच्ड। हाँ सर। सर लाइक उसके ऊपर क्या है काइटिन के? सी। सी फॉर द सेलुलोज है। ओके ओके। अरे यार मैं सोचता हूँ कि अब मैं शॉर्ट पे लिख लूंगा, आप समझ जाओगे, फिर आप लोग नहीं समझते। हाँ हाँ समझ गए सर, मत लिखो। अब मैं तो लिख दूंगा। आप लोग बिल्कुल नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह बोलते हो। समझता सर। ग्लाइकोजन इट इज हाईली ब्रांच, ठीक है। अच्छा इनोलिन क्या होगा? अनब्रांच। इसमें लिखा तो है लीनियर, तो एक बार और लिखता हूँ, इनोलिन इज अनब्रांच। ये सब एक 5 पॉइंट है, 5 के 5, और एक ये वाला 5 5 10 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ नीट के बता दिया, ठीक है। अब नीट की एनडीए का प्रॉब्लम आपसे ये सवाल कब पूछे, ठीक है? समझा कि नहीं? यस हाँ सर। और स्टार्च को कहता है, स्टार्च इज हेलिकल स्ट्रक्चर। आगे बढ़ा जाए, हाँ सर। प्रोसीड। लास्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब तक हमने अपना क्या हो गया, होमोपॉलीसेकेराइड खत्म हो गया, ठीक है ना। हाँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वी कैन से
जो आप लोगों ने पहले लिखा था होमोपोलिस में कौन सा नाम लिखा था आप लोगों ने? तो किसमें? हाँ, एक नंबर लिखा था यहाँ पे हम लोगों ने ना, तो लिखो व्हाट आई कैन से नंबर 2। आगे बढ़ो क्या? हाँ हाँ सर। सर, हो गया। नंबर 2 लिखो हेटेरो मीन्स डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट होगा। वर्ड समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ सर, हेट्रो। डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेकेंड यूनिट्स होंगे। So we can say composed of different monosaccharide unit. Different monosaccharide unit or repeating unit or monomeric unit. आप लोग नोट्स प्रॉपर्ली बना रहे हो कि नहीं? बना रहे सर। बना मैं रहे सबका सर। नोट्स कभी भी मंगा लूंगा, चेक कर लूंगा, याद रखना आप लोग। यस इसमें सर। हम लोग पहला बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा हियालुरोनिक एसिड। नाम सुना है क्या? नहीं। नहीं। ये वो वाला एसिड नहीं है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम HCl और दे आर डिफरेंट फ्रॉम HNO3 और दे आर डिफरेंट फ्रॉम H2SO4। दे आर अ सिंपल काइंड ऑफ एसिड व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अब बॉडी में कहां कहां प्रेजेंट होगा? दे आर फाउंड इन विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर पता है आप लोगों को? आई में। विट्रियस हाँ ह्यूमर कौन सा सर। बोलते हैं? फ्रंट या मालूम है। बैक। फ्रंट वाले को क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। बोर्ड्स वाले आप लोगों को पता है क्या? हाँ सर, मालूम है। नहीं पता है ना, तो आप लोग क्या बोलूं मैं? सबको पता है ना? ये सब मैं पढ़ा रखा हूं आप लोगों को। विट्रियस क्यों है और एक्वस क्यों है? एक्वस ए से आगे, ऑब्वियसली विट्रियस है तो पीछे हो गया, ठीक है? बोलो ना यार। हाँ सर। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या होता है, कोई बताएगा? फीटस को न्यूट्रिशन देने के लिए ये इस कॉर्ड के ज्वाइंट्स थ्रू। में प्रेजेंट होगा ये, और कुछ कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होंगे। इन द फॉर्म ऑफ lubricating एजेंट। अगर इस चीज की कमी आ जाएगी तो वी में फील पेन। lubricating एजेंट, समझा क्या? बोलो यार। वी हैव नेक्स्ट, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या? वी हैव हेपेरिन। ये तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। नेचुरल एंटीकोयागुलेंट। एंटीकोगुलेंट ऑफ ब्लड। आगे बढ़ो क्या? 1 मिनट। हाँ सर, कर दो। सबका हो गया? नहीं सर, 1 मिनट। बेटा जब मैं पूछूं तो तुरंत बोल देगा सर नहीं हुआ। एक बोलता हुआ, एक बोलता नहीं हुआ। हैव यू डन? हाँ सर, हो गया।
नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा कितना लिखा था हम लोगों ने? बी पार्ट ना, सो सी पार्ट, सी लिखो पैक्टीन्स, ये भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। हाँ बेसिकली दीज आर मिथाइलेटेड, ऑब्वियसली इसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा क्या? मिथाइलेटेड गैलेक्टोरुनिक, व्हाट वी कैन से, गैलेक्टोरुनिक एसिड। Plus we have galactose, plus we have arabinose. arabinose हम लोगों ने पढ़ा था क्या कहीं गया? नहीं सर, सुना है। पढ़ा है आप लोगों को, पढ़ाया आपको आई थिंक लास्ट 2 या लास्ट लेक्चर में, देखो जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था राइबोज वगैरह। हाँ सर, पढ़ा था। कैसे बोलते हैं नहीं नहीं पढ़ा है, सिर्फ सुना है। पैक्टिन इज फाउंड इन सेल वॉल, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दे आर प्रेजेंट इन सेल वॉल वेयर इट बाइंड्स द सेलुलोज फाइब्रिल्स इन बंडल। एरेबिनोज सर पेंटोस में पढ़ा था। कहाँ पर? पेंटोस मोनोसैकेराइड्स में। पेंटोस, वहां पे हम लोगों ने कुछ और शुगर में पढ़ा था, वहां पे हम लोगों ने वी हैव डन आरएनए एंड डीएनए, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज यस सर। शुगर फाउंड इन सेल वॉल। There it binds cellulose fibril, जो इनके फाइबर्स होंगे, इन बंडल्स, ताकि वो सेल वॉल बना सके। समझा क्या? यस सर। आपने मिडिल लेमन नाम सुना हो गया? हाँ सर। सुना है सर। तो सॉल्ट्स ऑफ पैक्टिन, वी कैन से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये भी नाम सुना होगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, सुना है क्या? सुना है। फॉर्म्स मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला आता है कनेक्टिंग पार्ट बिटवीन द different cell wall, एडजेसेंट सेल वॉल, since through which it material has to be passed. प्लाज्मोडेस्माटा आता है ना? हाँ बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा। मिडिल लेमेला के थ्रू तो पास होते हैं वो लोग ना, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस। हाँ सर। इसीलिए हम लोग से बोलते हैं क्या, कोई उसका मुझे दूसरा नाम बताएगा? पैक्टिन्स का दूसरा नाम कोई बताएगा मुझे? प्लांट सीमेंट। सीमेंट का काम क्या होता है? बिल्डिंग को जोड़ना ना, ईंट को ईंट से, ईंट को ब्रिज से जोड़ना। बोलो ना यार। दैट्स व्हाई ये पैक्टिन हाँ जो सेल को प्लांट सेल से जोड़ता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज प्लांट सीमेंट। इज इट क्लियर? यार आज बहुत कुछ पढ़ना था। यस सर। नेक्स्ट वी हैव, लिख लिया क्या सबने? नहीं सर। सर वो प्लांट्स क्या? प्लांट सीमेंट। अब ठीक है क्या? हाँ सर।
सब समझना है या फिर कुछ दिखने में दिक्कत देखने में दिक्कत हो रहा था? सर वो सीमेंट वाला ईएनटी वाला समझ रहा नहीं था। सीमेंट, CEMENT, जो इन नॉर्मल सीमेंट जो बिल्डिंग में यूज होता है वही सेम सीमेंट है, लेकिन यहाँ पर ये नेचुरल सीमेंट है जो कि प्लांट में सेल को सेल से जोड़ने में काम आता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ सर। आगे बढ़ा जाए क्या? हाँ सर। नेक्स्ट पार्ट लिखो, CD पार्ट लिखो। सबका हो गया? हाँ यस सर। सर। वी हैव, आपने नाम सुना होगा, हेमी सेलुलोज। इनके यूनिट्स कौन कौन से होंगे? मैनोज होंगे, वी हैव गैलेक्टोज, वी हैव अरेबिनोज, हम्म। वी हैव जाइलुलोज, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ हाँ सर। प्रेजेंट इन सेल वॉल। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। These are special kind of polysaccharides. These are slimy polysaccharides which has capacity to bind protein and water, जो कि सेल को बाहर के एक्वस एनवायरनमेंट से किसी भी तरीके से वेट होने से या फिर उसको जो भी उसका इनर कंटेंट है उसको ड्राई होने से रोकता है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल वी हैव म्यूसिलेज, नाम सुना है क्या आप लोगों ने? यस। यस सर। सबने लिख लिया क्या? हाँ सर। These are slimy polysaccharides, means we can say slippery. अब तक कितना पेज नोट्स कितने पेज का हो गया क्या? मेरा 13 पे 4 चल रहा है। इसका 4 है? सर, आज का चौथा पेज है। आज करने में टोटल पूछ रहा हूँ। सर मेरा 15th। किसी का 20 बोल दो। अभी वो हैंडराइटिंग पे डिपेंड करता है ना। सर आपने म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का क्या बोला? बेटा सर आपने म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का क्या बोला? basically mucopolysaccharides are special kind of polysaccharides which are help in what we can say protection against the what we can say aqueous environment, or it prevent the cell become dry or entering the extra kind of aqueous environment inside the cell. So these are special polysaccharide. For example we have mucilage. क्लियर है क्या? हेलो, हाँ सर, क्लियर है। which has capacity to bind with protein and water. These are called, so means mucopolysaccharide. Slimy means slippery. आपने वो देखा है क्या? व्हाट वी कैन से एक प्लांट होता है, उसे क्या बोलते हैं, जिससे एलोवेरा, एलोवेरा, उनके लेयर से कुछ जेल टाइप का सब्सटेंस सीक्रेट होता है कि जब उसको तोड़ोगे आप, हाँ बेसिकली दोज आर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है क्या? आगे बढ़ो।
हाँ सर। कॉमन म्यूकोपॉलीसेकेराइड में कौन आता है? म्यूसिलेज आता है। सर आपने उसमें क्या बताया विद कैपेसिटी टू बाइंड विद प्रोटीन्स एंड वाटर के बाद? होल्ड सो means it will, अच्छा, these are the kind of substances present in xerophytic plants. जो लोग ऐसा प्लांट जो डेजर्ट डेजर्ट में होते हैं, क्योंकि वहां पे वाटर की कमी होती है ना, तो वाटर्स को अगर ज्यादा लॉस होगा तो उनको अपने बॉडी में वाटर कम रहेगा, तो वो अपना प्रॉपर्ली फंक्शन कर नहीं पाएगा। तो दैट्स व्हाई टू प्रिवेंट दैट काइंड ऑफ लॉस दे हैव दिस काइंड ऑफ म्यूसिलेज। क्लियर है क्या? यस सर, दोबारा बताऊं? समझ गया। कॉमन म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो कि फेमस है, वो क्या है? म्यूसिलेज। और म्यूसिलेज किस चीज का बना होता है? गैलेक्टोज प्लस मैनोज। गैलेक्टोज भी हम लोगों ने पढ़ा, वी हैव आल्सो डन मैनोज। कंबाइनली क्या बोलते हैं हम लोग? उसको म्यूसिलेज बोलते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसी में, म्यूसिलेज इज मोर अबंडेंट और मोस्ट अबंडेंट इन सक्यूलेंट प्लांट्स। ये नाम सुना आप लोगों ने क्या? और फ्लैशी जीरोफाइटिक प्लांट्स। बोलो यार। ये एक हाँ तरह का सर। एडेप्टेशन है इन प्लांट्स में। जीरोफाइटिक प्लांट्स का ये एक तरह का एडेप्टेशन है, जो कि इसका इनर कंटेंट वाटर वगैरह को ये स्टोर करने में आसानी होती है। क्लियर है क्या? हाँ सर। In presence of mucilage, it will prevent the loss of water. ठीक है? और we can say they will store high amount of water in their body. These plants can store high amount of water in their body. इसका लिख लेना in their body. समझ में आ गया आप लोगों को क्या? जैसे अपने पास म्यूसिलेज है, उसी तरीके से वी हैव आल्सो डिफरेंट म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, जो हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा, हियालुरोनिक एसिड, वो भी एक तरह का म्यूकोपॉलीसेकेराइड के तौर पे काम करता है। वी हैव आल्सो कॉन्ड्राइटिन, वी हैव आल्सो हेपरिन आर डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल इन द ग्रुप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है क्या? हाँ सर। एक मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप सबसे, जिनको आता है वो नहीं बोलेगा, जिनको आता है वो नहीं बोलेंगे, ठीक है? विजन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। ऑप्शन देना पड़ेगा क्या? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज,
एरिथ्रोज, all of these. सबको आता है क्या? Which one of these are reducing sugar? Glucose, fructose, erythrose, all of these. सबको आता है क्या? हाँ सर। फरहान बेटा आप बताओ। all of these. क्यों? क्यों? क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सिंपल शुगर है। These are the simple sugar and they comes in the category of monosaccharides. मोनोसैकेराइड्स। That's why they are reducing sugar. Next question पूछ रहा हूँ, maltose is also a disaccharide. Option number 2 reducing sugar. Option number 3 malt sugar. Option number 4 all of these. आता है सर। ये कौन बताएगा? सुजल आप बता बेटा। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? Maltose is a option number 1 disaccharide. Option number 2 reducing sugar. Option number 3 malt sugar. Option number 4 all. सर ऑल। सबको समझ में आया क्या? आया क्या? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, विच वन इज नॉट एन ओलिगोसैकेराइड? ओलिगोसैकेराइड पढ़ा है क्या आप लोगों ने? हाँ। बट Option उसमें number one. आपने कंपाउंड्स के नाम नहीं दिए, कौन से आते हैं? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या नाम में लिखवाया था क्या? तो नहीं। दिए 3 बस। सुक्रोज नहीं लिखवाया आप लोगों को क्या? माल्टोज नहीं लिखवाया क्या? और एक और था ना? वो लैक्टोज। तो डाइसैकेराइड्स था ना, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ओहो माय वो गॉड। ओलिगोसैकेराइड्स में आता है। All this comes in the category of oligosaccharide बेटा, having 2 to 10 monosaccharide unit. रितिका हाँ सर। समझा? नहीं समझा क्या? यस। Disaccharides, trisaccharides, or up to 10 number of monosaccharide units हाँ, comes in the category of. ओलिगोसैकेराइड। यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन है which is not an oligosaccharide? सुक्रोज, गैलेक्टोज, रेफिनोज, वर्बेस्कोज। सर लास्ट 2 ऑप्शंस क्या थे? वर्बेस्कोज, BERTASCOSE, वर्बेस्कोज। गैलेक्टोज। सर ये नहीं है सर, 4th वाला। और अच्छा नाम अलग है इसलिए 4th वाला है। रेफिनोज। तो रेफिनोज तो है ना। गैलेक्टोज किसमें आता है बेटा? ट्राइसैकेराइड्स में। कैसे में आता है? हाँ सर, रेफिनोज ट्राइसैकेराइड में आता है। नहीं, मैंने पूछा कि विच इज नॉट ओलिगोसैकेराइड। ऑप्शन नंबर 1 है सुक्रोज, ये तो आता है। ऑप्शन नंबर 2 है हाँ। गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इसमें आता है क्या? आता है ना सर। उसको मैंने इसमें लिखा है क्या? सर मतलब रेफिनोज से बना है, लाइक गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से। ओ हाँ सर, वो नहीं आएगा ना, गैलेक्टोज ट्राइसैकेराइड है। सर बट वो ओलिगोसैकेराइड में आएगा ना, ट्राइसैकेराइड। जरूरी है क्या बेटा? जो उसके यूनिट्स हैं बोलो। अच्छा आप अपना नोट्स खोलो पिछले क्लास का। नहीं सर, आपने नहीं आपने उसको मोनोसैकेराइड में लिखवाया था, गैलेक्टोज को मानोज गैलेक्टोज। गैलेक्टोज होना अलग चीज है, वो किसी के साथ कंबाइन होकर अलग कंपाउंड होना ये अलग चीज है। जो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा वो हम लोगों ने ओलिगोसैकेराइड इसलिए पढ़ा कि कुछ गैलेक्टोज और किसी के साथ मिलकर के वो कोई नया कंपाउंड बना रहा था जो कि इसमें आया था ओलिगोसैकेराइड में।
लेकिन अगर गैलेक्टोज अकेले सिंपली है तो वो किस में मोनोसेकेराइड में था ना, जो जिसके हम लोग पढ़े थे, दिस इज आल्सो कॉल्ड ए ब्रेन शुगर प्रोसेस हाँ सर, इन ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू। पढ़ा था हम लोगों ने क्या? हाँ पढ़ा सर, था। तो क्या होगा बताओ? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज। which of the following is not a homopolysaccharide? हेमिसेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। क्या सर ऑप्शंस? नॉट अ होमोपॉलीसेकेराइड, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, हेमिसेलुलोज। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फोर्थ। क्योंकि काइटिन तो हम लोगों ने पढ़ा हाँ। होमोपॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोजन भी पढ़ा, सेलुलोज भी पढ़ा, और क्या पढ़ा हम लोगों ने? इंसुलिन। इनो चार्ज भी पढ़ा। इन्यूलिन एक सर। मिनट एक मिनट एक मिनट, देखिए बेटा आपने अभी क्या बोला? इन्यूलिन सर। नहीं ना, आपने सबसे पहले बोला क्या था? नहीं सर। आप अपने वर्ड्स में ध्यान रखो क्या बोल रहे हो। मैंने बोला ना कि आप लोग डाउट समर्थ, आप लोग क्लास में नहीं हो क्या? इन्यूलिन से इन्यूलिन। समर्थ, आर्यन, हो सर। सुजाल, हाँ सर। आप लोग क्लास में नहीं हो क्या? है सर। ये सवाल सबसे किया जा रहा है, किसी कुछ बच्चों से नहीं किया जा रहा है। आप लोगों की आवाज ही नहीं आ रही। हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या होगा? हेमिसेलुलोज इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड। ये किसमें आएगा अपने पास? बताओ, क्या सर? हेमिसेलुलोज किसमें आएगा? हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। आर्यन बताओ। हाँ सर। क्या पूछा मैंने अभी? सर मेरे को सुना नहीं सर। हेमिसेल, इसका मतलब क्लास में नहीं हो क्या? अगर वाकई सर आपको आवाज सुनाई नहीं पाया तो ठीक है। आई एम आस्किंग यू दैट हेमिसेलुलोज comes in the category of which kind of compounds? Which kind of polysaccharide? होमो और हेट्रो? सर हेट्रो। देख के बोल रहे क्या? सर कहाँ देखूं सर, नहीं देखा सर। पक्का? देखो देखो बेटा, मैं इसलिए आपसे बार बार क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर इंटरेस्टिंग पढ़ रहे हो तो ये सारा चीज आपको क्लास में याद हो जाएगा। जब आप रिवाइज करोगे तो आपको कम टाइम में पूरा मैक्सिमम रिवाइज हो जाएगा, तो आपको और टाइम बचेगा ना। जैसे हाँ आपके सर। पास इन नीट वी हैव 90 क्वेश्चन। ऑल दोज स्टूडेंट्स हु गॉट गुड रैंक्स, अच्छे रैंक जिनका आता है, वो उनका काम ये होता है कि 90 क्वेश्चन को 90 मिनट्स में नहीं करते हैं। वो कोई 60 में करते हैं, कोई 50 मिनट्स में करते हैं। जो टाइम बचता है ना वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगाते हैं, और उसको इजीली और पेशेंसली करते हैं उसको। आवर मेन मोटो इज टू सॉल्व द बायोलॉजी पोर्शन इन लेस टाइम। जो कम टाइम में उसको सॉल्व करेगा वही उसके लिए बेस्ट है। समर्थ, सुजाल, आर्यन, फ्रान, आप चारों की आवाज नहीं आ रही। समझा सर। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ये तो अपना हो गया म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। सर आप नेक्स्ट कब तक क्लास लेने वाले हो? 4 PM। सर आप 5-10 मिनट जल्दी छोड़ सकते हो क्या उसमें? अभी तो कुछ देर पढ़ लो आप, फिर अब छोड़ दें, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पे लिखो। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे हेमिसेलुलोज का यूनिट क्या है तो क्या बताओगे आप?
मैनोस, गैलेक्टोस, एरिबिनोस और ज़ाइलुलोस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन ये कहां पर प्रेजेंट होता है? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ये सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ ये नीट में पूछा गया है। प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ, आर्यन बताओ। मोनेरा। ठीक है, अच्छी बात है, मोनेरा। और उनके मोनेरा के सोल मेंबर्स कौन आते हैं अपने पास? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। इधर आप लोगों को कोई टेस्ट हुआ है क्या? हाँ सर, बहुत। कोई नहीं, आप लोगों का बहुत जल्दी सरप्राइज टेस्ट लिया जाएगा फ्रॉम माय साइड। गेट रेडी फॉर दी, जितना पढ़ा हूं सब सारा पूछूंगा, समझा क्या? यस सर। तो लेकिन फिर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में अलग अलग आ जाता है ना, बट पेप्टिडोग्लाइकन सेम रहता है। हम लोग बैक्टीरिया की बात करेंगे तो उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेनिंग वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया, तो कुछ डिफरेंस हो सकता है। हाँ सर, वो टिकोलिक एसिड पढ़ा था और लिपोप्रोटीन अलग अलग। वहीं आपको मैं लिपोप्रोटीन पढ़ाया था वहीं पर। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल ब्यूरामिक एसिड पेप्टाइडोग्लाइकन का यूनिट्स होते हैं ये। प्लस पेप्टाइड चेन ऑफ 4 to 5 एमिनो एसिड। एमिनो एसिड आप लोग भूल गए हो क्या? ऐसा कुछ नहीं सर। हम लोगों ने पेप्टाइडोग्लाइकन पढ़ा था क्या हम लोगों ने? नहीं पढ़ा था सर। आप जो बोल रहे हैं लिपोप्रोटीन, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। तो हम लोग जब प्रोटीन पढ़ेंगे तो वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वी हैव प्राइमरी, वी हैव सिंपल, वी हैव ड्राइड, और वी कैन से वी हैव कंपाउंड। ठीक है, तो जब हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इतना हो गया आप लोगों का क्या? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, अगार अगार। ये नाम सुना है क्या? ये यस नीट सर, 20 सुना है। 29 पे सवाल पूछा गया था। ब्राउन algae से बनाते हैं ना सर। ब्राउन एल्गी, नॉट दैट इज रेड एल्गे, अच्छा। रेड एल्गी होगा ना? इज obtained फ्रॉम रेड अलगा। यह नाम पूछा था किससे अपटेंड किया जाता है 2019 में? समझा क्या? ऐसा। इट इज obtained फ्रॉम रेड अलगा, उसका नाम पूछा गया 2019 में नीट के। पहला है ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया। वी हैव जेलिडियम। तो ये तो डाइनोफ्लैजिलेट्स है ना? हाँ बेटा, ये डाइनोफ्लैजिलेट्स है ना? कौन? ग्रेसिलेरिया। आपका एनसीईआरटी है क्या? हाँ।
एनसीईआरटी आप खोलिए, आपको मिल जाएगा। We have contrast. ठीक है, agar agar is also kind of peptidoglycan which is obtained from red alga, that is Gracilaria gelidium chondrus. बोलो यार। यस सर। आपके एनसीईआरटी में करेक्शन है, सबका एनसीईआरटी है क्या? हाँ सर। पेज नंबर 149 पे देखो, टॉपिक पॉलीसेकेराइड का लास्ट पैराग्राफ, these complexes are polysaccharides of heteropolymer. बेसिकली काइटिन किस में आता है, होमो या हेटेरो में? होमो में। हाँ, तो उसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ हेटेरो, उसको काट के आप लोग होमो लिख लो। वो ठीक जो है, लिखा है कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड आर, मोस्टली, हाँ बेटा, तो होमोपॉलीमर्स ही लिखा है ना? होमो लिखा हुआ है क्या? हाँ सर, हमारे इसमें तो होमोपॉलीमर्स हाँ लिखा सर, हुआ है। होमो ही तो लिखा फिर है। से बताएंगे कहाँ पे? किसी के इसमें हेटेरो है क्या? आई थिंक यू हैव अपडेटेड वर्जन, इफ आपका Yes, ओल्ड sir. वर्जन उसमें हेटेरो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं क्या? नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग टॉपिक लिख लो। अच्छा, आधार आधार का काम क्या होता है और जो सिलिमी पोलोसेकेराइड का काम क्या होता है? अच्छा, आधार का यूज हम लोग जेनेटिक्स में भी करते हैं, जेनेटिक्स में डीएनए का फ्रैक्शन को सेपरेट करने में, तो वहां पे आपको फिर से पढ़ाया जाएगा कि अगर अगर जेल इज यूज्ड एट द व्हाट वी कैन से सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है ना। तो जो जो छोटे छोटे होंगे वो इन जेल्स की तरफ पास हो जाएगा, और जो लार्ज होंगे वो मूव नहीं कर पाएगा। तो वो इस तरह से हम लोग अलग अलग फ्रेगमेंट्स के डीएनए को सेपरेट करते हैं, फिर हम लोग उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और म्यूसिलेज का काम फंक्शन क्या होता है? टू होल्ड वाटर इन ज़ेरोफाइट्स एंड प्रिवेंट डेसिकेशन। इसका एक फंक्शन आप लिख सकते हो, इन म्यूसिलेज its function is to hold water in xerophytes and prevent desiccation, means water loss, ठीक है। हेलो हेलो, बोलो यार। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक लिखो आप लोग, न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को टाइम है क्या, 5-10 मिनट, या छोड़ दिया जाए? नहीं है सर। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्या करते हैं? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। जो पढ़ा है इसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। सर आप संडे को ले सकते हो ना क्लास, अगर आपको चाहिए तो। संडे को आप लोगों का टाइम है क्या? तो सुबह का टाइम रहता है, शाम को नहीं। और कोई? तो क्योंकि और सुबह आगे हमारे और जिया सर भी लेते हैं क्लास। हाँ जी, सुबह सर जिया सर भी लेते हैं लेकिन
तो वो तो सर सैटरडे को लेते हैं। आप हाँ लोगों के सर। पास संडे को टाइम है क्या? हाँ सर, सुबह ले लो। सर सबके पास है? हाँ सर। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर, Bye, sir. बाय। Thank you, sir.